सर कौन कौन सी से बताएं? जी व्हाट फर्स्ट यूनिट से हो गया सर। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। Yesterday we are doing one problem, example 5, page 806. So we are discussing how to find the absolute maxima minima. So the problem, it was the problem, find the absolute maximum and minimum values of absolute maximum and minimum values of function is given fxy is 2 plus 2x plus 2y minus x square minus y square, and bounded region is also given on the triangular region in the first quadrant, in the first quadrant bounded by the lines, bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, and y is equal to 9 minus x. So the region you will plot in the first quadrant, this is the region, it will be a triangular region. X is equal to 0, your y axis, x axis, and this is a line, x plus y is equal to 9. This coordinate is 9 comma 0 intercept form. This is your 0 comma 9. So first thing what we do, we firstly find the interior points, because for absolute maximum you have to see all the possible points where this function may have maxima minima, and then out of the maxima minima I will find the highest value, that will be the absolute maxima, highest value, and lowest value will be the minimum value. So I will find all the possible points and the values at the points. So first I will find interior points, interior points. So interior points के लिए you will find your critical points, critical points. Critical points will be your interior points that you can find easily by taking fx is equal to 0 and fy is equal to 0. So fx is 2 minus 2x is equal to 0, and 2 minus 2y is equal to 0. So you got x is equal to 1, y is equal to 1. So 1 comma 1 is the critical point, interior point, critical point. एक ही आ रहा है यहाँ पे, and you can find what is the value. Ab I told you that because in the problem only we want to find absolute maxima minima, so I am not going to check that whether this point is a point of local maxima or minima. I know but that this 1 comma 1 will be lying inside somewhere here. So I will just find a value. What is the value? The value was coming 4. Up to this I have done yesterday. Now I will take, तो एक ही इंटीरियर पॉइंट है आपका, है ना. Now I will take the boundaries. So you have all the boundaries. So you have 3 boundaries of this triangular region: OA, AB, and PO. Firstly, I am taking along OA. इस boundary पे which point can give you the absolute maximum minima या maximum minima, है ना. Absolute की बात तो बाद में होगी. On this boundary, so how many points are there on OA? B is, I will take boundary points. So you have 3 boundaries. So firstly I am find along OA.
है ना। फर्स्ट आई एम टेकिंग along OA, तीनों बाउंड्रीज मुझे लेनी होगी वन बाई वन। तो along OA में फर्स्टली यू हैव बाउंड्री, देखो टू बाउंड्रीज तो आपकी दिख ही रही, एक पॉइंट ये है, ये पूरी बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री में if you will find here, you can see you have O, you have A and you have this. So along OA की क्वेश्चन क्या है आपकी, y is equal to 0 है, बोलिए, because it's x axis. Yes, sir. So at y is equal to 0, your function, now I want to find the value of the function along OA. So along OA your y is 0. So your function of fx comma y will become function of one variable. Fx comma 0 is how much? 2 plus 2x minus x square. This is the function. Now I want to find the point where this function will having maximum minima. कैसे find करें? It's a function of one variable now. बोलिए। सर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे सर। हाँ हाँ, because you know that it is a function of one variable. अच्छा यहाँ पर y तो 0 है, but x is lying what? x की भी कंडीशन लगा दिए, x is lying between 0 to 9 है ना, x इससे लाई कर रहा है y 0 along OA. So now because the function of one variable, so I can find the maximum minima by taking derivative test, because it's a single variable. So you will find f dash x. So यही कर देते हैं, चलो इसको। So I will find f dash critical, इसके stationary points. So f dash x will be how much? 2 minus 2x is equal to 0. Okay. So you got x is equal to 1 आ रहा है ना। तो x is equal to 1 पे what is the value you can find? अब आप f डबल, आपको यहाँ पर f डबल डैश चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई वांट टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, बोथ फाइंड करनी है हमें ना, इसलिए अगर खाली एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता तो हम चेक कर लेते। तो आई एम नॉट फाइंडिंग f डबल डैश, बस डायरेक्ट पॉइंट मिल गया हमें, इस पॉइंट पे आई विल फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, f1 कॉमा 0, क्योंकि x 1 हो गया, y तो ऑलरेडी 0 था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 0? 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3 हो गई है ना, एक वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू एक ये थी, इसे बॉक्स में कर दे रहा है। सेकंड वैल्यू यू गॉट दिस है ना। अब इसमें देखो ये जो 1,0 है, 1,0 इज हेयर, ये आएगा 1,0 है ना। लेकिन अभी इस पे बाउंड्री पॉइंट्स में 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स भी थे इस OA के, वो हम डायरेक्ट नहीं कर, दिख रहा है हमें इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, 0,0 9,0 OA का। इस पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये पॉइंट्स तो हमें पता है। तो ये तो आपका आ गया इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस OA है ना, एंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, the extreme points of OA are O and A 9,0। इस पे वैल्यू कितने आ रही है, f00 is how much, 2 and one value is this, and f9,0 is how much, put कर दिया 9,0 y0, so 9 to the 18, and this is how much, y तो 0 है, x स्क्वायर रखा, तो 2 plus 18 and minus 81 है ना, minus 61 आ रहा है, ये आ गया। So now OA completed. Now I will take AB, the line segment AB. कोई सा भी ले ले, OB या AB. I am taking now AB. OA is done along AB. This is your AB. So boundary points में second point I am taking along AB. अब along AB you can see here what's happening in AB. AB में x and y both are changing. AB की इक्वेशन क्या थी आपकी,
व्हाट इज दिस, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, है ना, ये है. So along AB, your y is equal to 9 minus x. So here also I can write the function of fx comma y in the same way. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, fx comma 9 minus x. इस लाइन पे पूरा ये हमेशा 9 minus x रहेगा. This is the equation of line segment. So fx 9 minus x means I will find what is the value of this. यहाँ y 0 था ऐसे, so 2 plus 2x, so you will write 2 plus 2x plus 2y. So y की place पे I will put 9 minus x square minus y square. So when you will solve it, it will be coming minus 61 plus 18x minus 2x square. Simple calculation है, squaring करें, it will be coming this. So now again I will find the maximum minima. So I will find what, f dash x, क्योंकि अभी x का function हो गया पूरा. So I will find f dash x comma 9 minus x. It's a function of one variable. So it will be how much? 18 minus 4x. 4x. This is equal to 0, है ना? I want to find stationary point. So x will be how much? 9 by 2. So जब x 9 by 2 है, y is how much? 9 minus x by 9 minus x. So 9 minus 9 by 2. 9 by 2. It is also 9. 9 by So you got 2.9 by 2, 9 by 2, है ना? ये points कहाँ होंगे? इसी लाइन पे कहीं आ रहे होंगे, देखो. x पे 9 by 2, y पे 9 by 2. Somewhere, suppose it is here somewhere. 9 by 2 9 by 2 कितना हो गया? 4.5 4.5 हो गया. इसका सेंटर हो गया, है ना? यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, ये मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. So you got interior point of AB 9 by 2 9 by 2. इस पे वैल्यू चेक करते हैं. What is the value of the function 9 by 2 9 by 2? When you will be putting it is coming minus 41 by 2. ठीक है, इस फंक्शन में रखने चेक कर ले, ये आ जाएगी. So you got this. Now I will take the extreme points A and B. At the extreme points AB के ही, at the extreme points. So extreme points क्या है आपका? A है, A का कोऑर्डिनेट है 9,0 and B is 0,9. So f of 9,0, ये तो हमने अभी निकाला ही था ऊपर, ये minus 61 है ना, ये तो सेम वही आ रहा है. और what about f 0,9? It is also same because it's a function symmetric in x and y. x y में symmetric है, देखो जैसे x के टर्म से वैसे y की, तो 0,9 की वैल्यू भी सेम आएगी. Now the last boundary is OB. So now third along OB. OB में what is happening? X is 0 and y is lying between 0 to 9, है ना. OB क्या आपकी, ये है OB. This is your OB line, OBPO. So here y is 0, sorry, x is 0 and y lying 0 to 9. So again I can write function f as 0 comma y. So 0 comma y में it will become how much? 2 plus 2y minus y square. यहाँ पर भी जब आप f dash 0 comma y निकालेंगे, 2 minus 2y is equal to 0. So this implies that y is equal to 1. So f of 0 comma 1 will be how much? 0 comma 1, 2 plus 2, 4 minus 1, 3 आ रहा है, यस सर 3 आ है गया. ना, ये 3 आ गया. और O और B पे -0 और 9 तो माइनस आ जाएगा. at O and B, तो O और B तो हम पहले ही निकाल चुके हैं इससे, यस है ना. B ये ले लिया था, सारे पॉइंट्स B भी आ चुका है. तो यहाँ पे अगर आप निकाले दोबारा लिख सकते हैं, या ना भी लिखे क्योंकि ऑलरेडी यू हैव डन, उसी को लिख दीजिए. F00 आ रहा था 2 and F09 was -61, -60. है ना.
इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या ना लिखे आप तो ये लाइन लिख सकते हैं कि इट इज ऑलरेडी डन पार्ट 2. सो नाउ you list all the points. So what is the values? So you can see here, if I will see the highest value की बात करें तो 2 3 -61 तो नहीं है, ये माइनस था, 2 -61 और 4 and 3. तो 4 was the highest value, है ना, थी ना मैक्सिमम वैल्यू. तो अगर आप सारे पॉइंट्स लिखे तो यू कैन राइट, सो we get 4 2 -61 3 and -41/2. We get these. So the highest is 4, which at which point, at 1,1, है ना, Yes, and sir. the lowest is -61 at 2 points पे था ये, 0 0,9 9,0. 9,0. So this is your absolute maxima. This is your absolute maxima and this is your absolute minima, है ना, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ये हमें निकालना था. एब्सोल्यूट मिनिमा है ये एंड दिस इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा. तो इतना वर्क आपको करना होगा अगर इस टाइप की प्रॉब्लम होगी, फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा. ओके, बताइए. Yes, sir. Yes, sir. इसका इस टेस्ट का जो हमने कराया मैक्सिमम मिनिमा, इट हैज अ एप्लीकेशन. यू कैन अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू हैव सम बॉडी एंड यू वांट टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा. से एक प्रॉब्लम 41 है इसमें. ये फ्लैट सर्कुलर प्लेट हैज द शेप ऑफ द रीजन, एक डिस्क का रीजन दिया हुआ है, तो उस प्लेट पे टेम्परेचर दे दिया एज ए फंक्शन Txy. फाइंड द टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट पॉइंट ऑन द प्लेट. तो वहां पर आपको हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट पॉइंट निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालने हैं वहां के, है ना. तो यू कैन फाइंड बाय दिस. कोई डिस्क है, अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसका हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट पॉइंट निकालना है. होता क्या है, जब कोई मैटर होता है, जब वो उसकी अगर हमें स्ट्रेंथ चेक करनी होती है तो क्या करा जाता है, उसे हीट करा जाता है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है ये कि कोई मेटल है, उसको हमें चेक करना है कितने टेम्परेचर पे जाके क्रैक हो जाएगा, स्ट्रेंथ कितनी है. तो मशीन से उसमें डाल देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, 100 डिग्री 120 600. तो अगर आपको चेक करना है तो किसी हॉटेस्ट पॉइंट पे क्रैक हुआ तो देखते हैं कितने टेम्परेचर पे जाके ये आपका क्रैक हो रहा है इसमें. So you can find all these things by using this second derivative test concept. If you know the temperature in the function form, है ना, as a function temperature आपको given हो, तब x square plus y square minus 2x इस टाइप, वहाँ इसका एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा फॉर्मूले का. So ये प्रॉब्लम्स थी. एक्सरसाइज है आप 14.7. इसमें एक प्रॉब्लम और है 31. एक्सरसाइज 14.7. 31 प्रॉब्लम है, ये आप खुद कर सकते हैं. मैं ऐसे आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. इसी टाइप की प्रॉब्लम, अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है. इफ fxy is 2x square minus 4x plus y square minus 4y plus 1 on the closed triangular plate. ये भी triangular plate दी है आपको, bounded by the lines
x is equal to 0, y is equal to 2 and y is equal to 2x in the first quadrant. So find the absolute maximum minimum. Find the absolute maxima and minimum values of this equation. तो से देखो फंक्शन गिवन, बस यहाँ पे ट्रायंगुलर रीजन थोड़ा चेंज हो गया है। क्या होगा ट्रायंगुलर रीजन इसका, बताइए जरा कैसे बनाएंगे। सर एक तो y एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस हो गया, ये x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू सर 2, y इक्वल टू 2 से सर लाइन यहाँ से सीधी चली जाएगी। ये ठीक है, Yes, ये y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू और 2x, x सर इक्वल एक टू पैराबोला टाइप का बन जाएगा कुछ। पैराबोला। क्यों, कोई कर्व है क्या, ये नहीं, नो सर नो। स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू 2x क्या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बस ये कि इसमें x 0 पे y 0, x 1 पे y 2, तो x से जब x की वैल्यू 1 है y 2 है तो y इज इंक्रीजिंग रैपिडली देन x 1 है तो y 2, x 2 है तो y 4, तो जब y तेजी से बढ़ रहा है तो y की तरफ ज्यादा होगी वैल्यू, है ना, इस तरीके से। जी सर। अगर y इज इक्वल टू x बाई 2 होता तो नीचे हो जाता, x तेज से बढ़ रहा होता। y इज इक्वल टू x में क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है बीच में 45 डिग्री के एंगल पे। So you have y is equal to 2x. So this is your line y is equal to 2x. So you got this point. ये आपका बाउंडेड रीजन हो गया। कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0 0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, क्या है कोऑर्डिनेट इसका, b का सर 1,2। y2 है, यहाँ पे इस पॉइंट पे y2 है तो x1 हो गया 1,2। व्हाट अबाउट दिस, 0,2। 0,2। ठीक है, तो ये OAB, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड fx fy, उससे इंटीरियर पॉइंट निकल के आ जाएंगे आपके पास, है ना। सेकंड यू विल फाइंड along OA, along AB, along PU, and then you will list all the values and then you will see which is the highest value, which one is the lowest value. कर लेंगे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, यस सर। ठीक है। प्रॉब्लम जो मैं छोड़ रहा हूँ ये एडवांस की आप कई कर रहे हैं, किसी ने कॉपी बनाई अभी तक नहीं नोट्स की अपने, यस नहीं सर। नोट्स Yes, sir. बनाया है, किसी ने नोट्स बना रहे हैं, कोई नोट्स बना रहा है इसके नहीं, बना रहा हूँ। Yes, sir. सारे के सारे स्टूडेंट्स नोट्स बनाएंगे अपने, जो मैं एक्सरसाइज Yes. करा देता हूँ और जो छोड़ देता हूँ, ठीक है, वो आप करेंगे। दैट इज योर होम असाइनमेंट। एडवांस कैलकुलस की आप कॉपी बनानी जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बनाते थे, है ना। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कोई चीज देखनी अगर आपको तो आप अपने नोट्स उठा के देख सकते हैं। हर टाइम वीडियो लेक्चर सामने कोई होगा, लिखे हुए नोट्स जो होते हैं वो आपको ज्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग होगी, आगे भी काम आएंगे। एडवांस कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर कंपटीशन में या किसी भी जगह पर आप जाएंगे इसके क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। अभी मैंने क्विज लिया था जो है इसमें नेशनल मैथमेटिक्स वीक में, उसमें एडवांस के क्वेश्चन डाले थे, जिन बच्चों ने अपेयर हुए थे उन्होंने किए होंगे। तो इसके क्वेश्चंस आपको हर जगह हर कंपटीशन में मिलते हैं। तो इसको नोट्स बनाए सारे, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें हाईलाइट किया करिए अपनी कॉपी पे, ठीक है भाई। सब लोग नोट्स बनाएंगे, मैं किसी के भी नोट्स सब मांग लूंगा कभी भी सबमिट कराने के लिए गूगल क्लासरूम पे कोड बना के। तो अपने नोट्स बनाते रहे, ये प्रॉब्लम्स जो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, इन प्रॉब्लम्स को अपने आप करते रहे, और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको भी करें उसमें। यस सर। जी, इन सब के भी आपके मार्क्स रहेंगे। Yes, sir. जब आप खुद से बनाएंगे लिखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी उसमें ना। जब लिखने बैठेंगे कोई चीज तो ज्यादा चीजें जो है समझ में आती हैं, डाउट्स क्लियर आते हैं अपने आप। तो इसमें और कोई प्रॉब्लम तो आई थिंक है नहीं। अब देखो एक्सरसाइज 14.7 है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, 74 प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने सिलेक्टेड प्रॉब्लम जो सिलेबस में थी ले ली, लेकिन आप अपने आप प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं। कंसेप्ट के लिए आपके सामने सारे, तो आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं अपने आप, उसको समझ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं।
इस बुक का सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे सॉल्यूशन ऑफ थॉमस कैलकुलस तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑनलाइन सॉल्यूशन पड़ा हुआ है इस पूरी बुक का, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है उसमें। चलो नेक्स्ट concept, important concept, we have Lagrange multiplier method. One more method is there for finding maximum minima, but that is called constant maximum minima. Means constant means what? Here the function was given to you और आपको इसका maximum minima निकालना था, लेकिन sometimes if you have a, तो it is called unconstant optimization problem. ये जो था आपका it was unconstant, साथ में कोई constant नहीं था, it was unconstant maxima minima. Similarly, we have a concept constant maxima minima. Constant maxima minima. Constant means कि साथ में कोई कंडीशन लगा दी हो आपके, है ना? Constants होते हैं ना, जैसे कहते हैं यार ये constants है मेरे साथ, conditions. यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी, बस फंक्शन गिवन था, आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना था। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक आपको बाउंड्री दे दी थी कि इन द बाउंडेड रीजन। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट लगा दे कि फाइंड द पॉइंट ऑन द, जैसे एक प्रॉब्लम है आपकी, सपोज एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं, इट इज 14.8 नाउ। चलो नेक्स्ट उससे स्टार्ट करते हैं। 14.8 नेम इज Lagrange multipliers. So it is basically your constant maxima minima, उसको मैं ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकता हूँ ना, क्योंकि जो हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं या मैक्सिमम निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि हम ऑप्टिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? द बेस्ट वैल्यू। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और सपोज करिए कॉस्ट की प्रॉब्लम है कि कॉस्ट क्या है किसी चीज की, तो वहां पर कॉस्ट आप क्या चाहेंगे कि मिनिमम कॉस्ट हो, तो वहाँ ऑप्टिमम वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अगर वही प्रॉब्लम किसी ने कहा प्रॉफिट की है कि साहब आपकी कोई चीज़ है आपको इससे प्रॉफिट निकालना है, तो वही प्रॉब्लम क्या बन जाएगी? मैक्सिमम प्रॉफिट की। इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही है मैक्स और मिनिमा दोनों इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, प्रॉब्लम इज फाइंड द पॉइंट P x y z on the plane। एक प्लेन की क्वेश्चन गिवन है 2x plus y minus z minus 5 is equal to 0, that is closest to the origin, closest to the origin। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट निकालना है प्लेन पे, लेकिन वो पॉइंट क्या हो? क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। ये कोई प्लेन है आपका, अगर आप प्लॉट करें सपोज इट इज सम प्लेन सपोज, एंड हेयर यू हैव ओरिजिन XYZ, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स, आई वांट टू फाइंड व्हिच पॉइंट इज क्लोजेस्ट टू दिस ओरिजिन। इस पे कौन सा पॉइंट होगा? प्रॉब्लम क्लियर है ना? तो यहाँ पे व्हाट इज द, यू हैव अ कंडीशन, तो कंडीशन क्या है? इस प्लेन पे एक पॉइंट निकालना है लेकिन क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो ये क्लोजेस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू हो गई है। अगर मैं ये सपोज कर लूं कि डिस्टेंस है, हमें क्या फाइंड करना है? क्लोजेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इफ यू हैव अ पॉइंट सपोज हियर XYZ, सपोज मैंने मान लिया लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज O, दिस इज P, है ना? तो व्हाट इज OP? OP सर मिनिमम डिस्टेंस होगा। हाँ, तो OP क्या होगा? अंडर रूट x Under माइनस root 0 एक्स और स्क्वायर x square plus y प्लस square, वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाए, है ना? y square हमें plus यस, तो ये आपके पास डिस्टेंस है, तो इसे
ये डिस्टेंस हो गया ना, तो इसको मैं एज ए फंक्शन लिख सकता हूँ, है ना, इसको हम एज ए फंक्शन नहीं लिख सकते। तो प्रॉब्लम इज व्हाट, सपोज इसको मैंने एज ए फंक्शन, ओ इसकी मुझे क्या निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो निकालनी है। क्लोजेस्ट ओरिजिन मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज मैं इसे एज ए फंक्शन, मिनिमम वैल्यू। सपोज आई एम कंसीडरिंग एज ए फंक्शन, और अंडर रूट की जगह मैं डायरेक्ट ये ले लेता हूँ, एक ही बात, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है या इसकी निकालनी है। तो आई वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्या है, ये तो आपकी डिस्टेंस है। ओके भाई, आई वांट टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ, सपोज ओपी स्क्वायर है, अगर स्क्वायर कर दूंगा रूट हट जाएगा, उसे मैंने एफ मान लिया। तो आई वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, लेकिन कंडीशन क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो पॉइंट इस प्लेन पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी फिर रहा हो, है ना। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो प्रॉब्लम इज व्हाट, सो द प्रॉब्लम इज टू find the minimum value of fxyz subject to the constraint means subject to the constraint या condition, क्या कि वो पॉइंट ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। वो ऐसा पॉइंट हो, इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर खाली मैं आपसे पूछता इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप सेकंड डेरिवेटिव लगा के निकाल देते फटाफट अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर आप टेस्ट लगाएंगे निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द minimum value under the condition this that the point should lying on the plane। तो ये कंडीशन है साथ में, है ना, यानी कि ये आपकी क्या है, इट इज अ constraint ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आई विल बी सॉल्विंग बाय लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मेथड। इज इट क्लियर? नो? यस सर। हाँ, अब देखो इसका एक तरीका तो ये था कि हम इसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में चेंज कर लें और फिर उससे सॉल्व कर लें। जैसे यहाँ पर आपके पास z है, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, z यहाँ से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z सिंपली, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन वे इज व्हाट, फॉर एग्जाम्पल आई कैन फाइंड हियर z। अब पॉइंट इज कि यहाँ पर जरूरी नहीं z, मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, x की भी, y की भी, z की भी, है ना, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको z ही को निकालना है। सपोज I am finding the value of z here. Suppose means what I am taking x, y as independent variable. Suppose I am considering, let us consider x and y as independent variables. Independent variables. So what will happen? Then z is how much? 2x plus y minus 5 ये हो जाएगा, है ना। इसे उठा के यहाँ रख देते हैं, I can put it in fxyz, है ना। I want to tell you actually कि जो मैं मेथड ले रहा हूँ ये मेथड कहीं कहीं फेल हो जाएगा, तो हमें लैग्रेंजी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। ये मेथड जो बता रहा हूँ आपके माइंड में शुरू में ये आएगा कि अगर प्रॉब्लम दे रखी होगी तो आप सोचेंगे कि इसमें z की वैल्यू निकालो, इसे fxyz को चेंज कर लो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में। सो fxyz will become now function of xy. How much it will be now? x square plus y square and z square will be how much? 2x plus y, ये आपका z की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, है ना। तो fxyz जो था ये, it will become, लिख दे रहा हूँ, it becomes f of x y 2x plus y minus 5। जैसे अभी हमने पीछे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को वन में चेंज किया था, तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ये आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, यहाँ से आप fx निकाल सकते हैं, fy निकाल लेंगे, है ना, इसे सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब ये तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ही बन गया, बोलिए। जी सर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे fx0 fy0, इट विल बी गिविंग यू इट इज कमिंग x इज इक्वल टू 5/3, सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 5/6, ठीक है।
इस पर आप fxx निकालेंगे तो fxx will be coming 10, fyy will be coming 4 and fxy will be coming 4. यहाँ now you will check fx क्या कंडीशन थी, fxx fyy minus fxy square, so it is coming 40 minus 16 greater than 0. So greater than 0 का मतलब क्या हुआ कि it will have maximum minima. And what is fxx? fxx is 10, so it is positive. So it means what? It will give you the, this is the point of minima, है ना, क्योंकि ये आपका fxx क्या है, 10 है. So this implies that 5/3 and 5/6 is a point of local minima. तो z, इससे z निकाल लीजिए आप. How much z? 2x plus y minus 5. तो z will be coming minus 5/6. तो आपके पास पॉइंट्स निकल गए 5/3, 5/6 minus 5/6. So distance you can find. So distance OP will be what? Under root x square plus y square plus z square. It was coming 5/√6. ये डिस्टेंस आ रही है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस. तो इट वाज वन ऑफ द वेज जो आप इजीली कर सकते थे यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. लेकिन यहाँ पर आपने z को लिया तो पॉसिबल हो गया, लेकिन जरूरी हुई z को लूं मैं. यहाँ पर आई कैन टेक y इज इक्वल टू आल्सो, आई कैन टेक y इज इक्वल टू व्हाट, 5 plus z